Assalamu alaikum to everyone. Is my voice coming to all of you? Is my voice coming to all of you? Yes, sir. Okay. So we are left with three classes of teaching of literature. So one class I'm taking your one class right now, and two I will take tomorrow. So this is how your course of teaching of literature will end. Today I'm giving you the revision of the course of teaching of literature, and there will be one or I think two topics, small topics, not big one, which I will teach tomorrow. And this is how your course will come to an end. So can you tell me what things I have taught you so that we can have a reminder? Because these things you will be asked in the exams. Let's wait for 2 or 3 minutes more. Only 10 students are here with us.
Yes, remind me of the things which we have done. Abdul Sattar. Which we have semester, that was what is literature. We started with what is literature, right? And Okay. And then importance of English language in Pakistan. importance of English language in Pakistan, right? Learning of Yes, and language. What does learning a language involve? what does learning a language involve, right? Then the role of teacher, The role the roles of teacher, of teacher, right? then characteristics and types of Characteristics learners. and characteristics and types of learner, right? Then seating and grouping. Sitting and seating, sitting and grouping, sitting and grouping, and then From English language teaching point of view. from English language, sitting and grouping, Students in classroom. sitting and grouping from Sitting and grouping. English language classroom. Yes, and then Language teaching. yes, speak loudly and clearly. School, colleges, etc. from English language teaching. English language teaching. School, colleges, school, colleges, etc. from English language teaching point of view. चलो उसको हम यूं भी कर सकते हैं. Okay. और Okay, sir. Then lesson planning. lesson plan. Right. And the last topic was designing lesson. Designing a lesson. Lessons. इसके बाद last time हमने कुछ पढ़ा था, if you remember, in the last two Yes, sir. classes. In final semester, we have learned deductive and inductive approach. Teaching approaches. देखेगा ना, teaching Teaching approaches. language students. Hmm? Yes, sir. In which we discussed deductive and inductive approach. और इसके अलावा Teaching language structure. Teaching language structure. अच्छा, teaching approaches, teaching language structure. Teaching grammar. Structure, teaching grammar, right? Then popular methods in language teaching. Popular methods
in language. ठीक है. Yes, sir. There'll be 2 more sessions which I will take tomorrow. In that session will be about speaking and skills and writing skills. Speaking and writing skills के वाले जो sessions होंगे, they are also very important. This is how your course will come to an end, right? So these things we have done in the semester. Now, of course, there are many things. There are things which you have also covered in your midterm exams. In midterm exams, you have covered them as well. And if you have any problem regarding these things, you can ask. What is literature? Literature can be defined from different perspectives. We have also discussed the importance of English language from according to different research. What does learning a language involve? Means what do we need to learn? What do we need to learn a language? हमें किसी भी language को सीखने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? हमने उसको भी देखा. Then we talk about the roles of a teacher. There are multiple roles of a teacher, especially language teacher has many roles to play. मतलब आप अगर अंग्रेजी जबान इंग्लिश लैंग्वेज टीच कर रही हैं, खास स्कूल में हो, कॉलेज में हो, किसी लैंग्वेज सेंटर में आप पढ़ा रही हो, wherever you teach English language, you need to have multiple roles. तो वो रोल्स क्या है उसके बारे में आपको यहाँ से बताया गया था, राइट? हमारे लिए बताना है. And these all are very important. Characteristics and types of learner. Then we discuss what are the characteristics and what are the types of learner. Learner here means students who want to learn English language. Then we talked about sitting and grouping from the point of view of English language classroom. यानी कि English language classroom में किस तरह से student को बैठाना होता है और किस तरह से उनको ग्रुप में डालना होता है. This is what we discussed or what we did. English. So हमने कुछ रिसर्च पेपर्स के जरिए जो है हमने देखा था कि how these things are important. English language teaching at school, colleges, etc. Lesson planning, it's a very important topic. We discussed this thing as well, right? Designing lessons, यानी कि lessons को design कैसे करना होता है? लेसन को डिजाइन कैसे करना है? पहले तो लेसन प्लान कैसे करना होता है. लेसन प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेसन प्लान के हवाले से हमारे बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता लेसन प्लानिंग होती क्या है. एंड दैट इज व्हाई दे डू नॉट प्लान एनी लेसन एंड दे डू नॉट टीच इन अ प्रॉपर वे. सो व्हेन दे डू नॉट टीच इन अ प्रॉपर वे, सो स्टूडेंट डू नॉट लर्न इन अ प्रॉपर वे. वो फिर एक वक्त ज़ाया होता है. और उस लेसन को प्लान करने का मतलब है यू हैव टू डिजाइन अ लेसन एज वेल. टीचिंग अप्रोचेस को हमने देखा था और उसमें हमने पढ़ा था अप्रोच और मेथड वगैरह में क्या फर्क होता है एंड व्हाट आर डिफरेंट अप्रोचेस. उसमें हमने कुछ टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ा था. इफ यू रिमेंबर, कैन एनीवन रिमाइंड मी ऑफ टीचिंग मेथड्स? कैन एनीवन रिमाइंड मी ऑफ टीचिंग मेथड्स? Yes, sir. Teaching methods. The first teaching method was grammar translation method. ग्रामर right, ट्रांसलेशन sir? मेथड. या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में क्या बताया था? इट इज अ मेथड व्हिच हैज almost failed and it is still being used in many
Areas, in which teachers translate lesson to students. Which English language is taught through translation, grammar and through translation. And this is how students are given different, sentences, and then they are asked to translate them. तो वो जो मेथड है वो ट्रेडिशनल अप्रोच कहलाता है, रिवायती अप्रोच कहलाता है, जो अब बहुत से डेवलप कंट्रीज में जहाँ पे मतलब जो इंग्लिश को पढ़ाया जाता है, दे आर नॉट यूजिंग दैट मेथड, नाउ दे आर यूजिंग द अदर वन। और क्या बताया था? Direct method. Yeah. Direct method. Direct method is a method in which English language is taught through through English language, and it is a method that is very much in. Or hurry up, and Lingualism, audio-lingual method. audio-lingual method, very good. Silent method. Then CLT, communicative language teaching. It is a very popular method nowadays. communicative language teaching, and humanistic method. Humanistic For all approach, humanistic right? methods. Right, very good. Sir, in humanistic approach, we have learned 4 methods: communicative language teaching, then suggestopedia, Suggestopedia, right? and total physical response. TPR, The TPR upon silent total way. physical response, very good. And silent Then method. the silent way. So these are silent different method. methods which teachers can use in their classroom in order to teach English language, right? Very good. And Then inductive approach and deductive approach. yeah, inductive and deductive. What is inductive and what is deductive? सर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड मेथड भी है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड मेथड है या ओरल सिचुएशनल है? नहीं, ये इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच को हमने पढ़ा था ना, इसमें क्या पढ़ा था? Sir, it is a teacher-centered approach One by one. in Yes. which सर स्पेसिफिक से बेसिक हम जनरल की तरफ जब बात करते हैं तो वो इंडक्टिव अप्रोच आई थिंक कुछ इन्हीं के इंग्लिश लैंग्वेज एक तो है रिवायती अंदाज में पढ़ा रहे होते हैं, फर्स्ट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑल सच थिंग, वो कौन सा मेथड है? सर डिडक्टिव, इंडक्टिव? इंडक्टिव सर। एक मेथड है जिसके एग्जांपल्स पहले देते हैं, उसके deductive, बाद sir. फिर Deductive. डिडक्टिव, उसके बाद उसे बताते हैं, एंड देन दे टेल रूल्स. दे डोंट फोकस मोर ऑन रूल्स, दे फोकस मोर ऑन एवरीडे एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिकल सिचुएशन. Is that clear? So inductive approach and deductive approach. We have also done this one. हमने इसको भी देखा, तो आप लोग इनको देख लिया. Okay. And then इसके बाद then course book and other materials. then course book and other materials. हाँ, उसका तो mention ही नहीं किया आपने. course book and other materials. Course book and other materials. Course book and other materials. Yes. और course book and other materials में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? Sir, in course book we have learned arguments and favors of course book. We have arguments and discussed. favors We have of read course book. the arguments in favor of course book and arguments against course book, right? Very good. And we have also discussed what are the characteristics of a good course book. How to use course book that we have discussed. Okay, very good. Or
I think that's all, sir. टीचिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर वगैरह हमने कुछ स्ट्रक्चर की टीचिंग में उस पर भी बात की थी कि हाउ टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड हाउ टू टीच ग्रामर, टीचिंग ग्रामर, एंड देन ऑफ कोर्स ये जो पॉपुलर टीचिंग मेथड्स इन टीचिंग लैंग्वेज, इसको तो हमने कर लिया. So there are now two things which I will teach you. I'll tell you it's about speaking and writing skills, right? Very important things. तो बता दूंगा. This is how your course will be completed. So if you have any problem regarding this, you can ask me. ये सब चीज़ें आपको करवाई हुई हैं. अगर आपसे पूछा जाए इनमें से तो आप काइंडली बता दीजिएगा. ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे. ऑनलाइन में मेरा नहीं ख्याल है कि आपको ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता होगा जिस तरह से फिजिकल एग्जाम्स होते हैं ऑन कैंपस. उसमें यहाँ तो आपके पास सब मटेरियल आपके हाथ में होता है, सिर्फ आपको उसको मैनेज करना होगा और मैनेज करके आपने लिखना होगा. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. इसमें आपके सिर्फ मैनेजमेंट मतलब हाउ टू मैनेज ऑल दिस थिंग. अभी चीज़ मैंने आपको सब, तो ये सब चीज़ें आपके सामने आएगी. इनमें दो चीज़ें और हैं जो मैं भी ऐड कर देता हूँ आपके सामने. तो इनमें से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है. स्पीकिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स. So these are the two things which are remaining right now, which can be asked, which will be asked in the exams. So since these exams are online, तो इसमें ज़ाहिर है ऑनलाइन के हवाले से आपके पास ये सब चीज़ें होंगी और आप अपने आप को तैयार रखिएगा इन सब चीज़ों के लिए. Yes, any question? आप लोगों को गूगल क्लासरूम का मैं भिजवा दूंगा. उसके इसका जो है आईडी, उसका जो आईडी वगैरह वो भिजवा दूंगा. उसी में आप लोगों ने पेपर करके सेंड करना होगा. And inshallah, I will do this thing on 20th of this month, because on 21st you have your first paper, and that will be of poetry. And I think 28th you have second paper, and you have this paper, teaching of literature. Am I right? Yeah, is that clear to all of you? Yes, sir. अब Sir, अगर what will आपको- be the timing? Like final exam की timing क्या होगी? या आज मैं जाऊंगा डिपार्टमेंट में. अभी यहाँ से फारिग होकर आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, सो आई विल टॉक टू देम अबाउट दिस एज वेल. लास्ट टाइम क्या टाइम था? Sir, 9 to 12. 9 to 12. क्या Yes, sir. मतलब? Sir, And 9 sir, AM से 12 To बजे show. तक. सर मॉर्निंग मिड में यही था टाइम 9 to 12 दिन को, और फाइनल हुआ था जब हम पिछले सेमेस्टर में. तो आपका टाइम ये था 9 बजे, आप सुबह में भेजा था पेपर, हमने रात 9 बजे सबमिट कराया था. 9 to 9 पूरे दिन का टाइम था. 12 घंटे का था ना. तो ये मैं जी, बात 12 घंटे करके का टाइम था. बताऊंगा. आप उनसे बात करके ना पूछ के, वट एवर दे डिसाइड, वट एवर द HOD डिसाइड्स आफ्टर द मीटिंग, वो सब तय होता है ना वहाँ पे. इनकी आपस में मीटिंग्स होती हैं, उसमें तय करते हैं कि कितना टाइम देना चाहिए और कितना. तो देन आई विल टेल यू इंशाल्लाह. सर मिड से पहले जो पढ़ाई थी टॉपिक, वो भी इंक्लूड है इसमें फाइनल में? अभी आपके सामने सब है. ये जितने भी आपके पास टॉपिक है ना, सबको आप रखिएगा. क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर है, ऑनलाइन एग्जाम्स में सब कुछ आपके पास ही होता है ना भाई. अब आपने इसको मैनेज करके अपने अल्फाजों में बताना है. सर इसमें टॉपिक या स्पीक लाउडली एंड क्लियरली. आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा.
यस सर टॉपिक्स बहुत हैं, बर्डन हो जाएगा तो इसलिए। यार टॉपिक बहुत है तो आपके सामने सब किताब खोल के देखेंगे ना, ओपन बुक एग्जाम्स है ना भाई, ओपन बुक एग्जाम्स में तो ये सब कुछ चलता है। अगर ये ऑन कैंपस होता तो मैं से कई टॉपिक छुड़वा देता आप लोगों को। ऊपर के जो आपके पास 1 2 3 टॉपिक्स हैं इनको आप छोड़ दीजिएगा, समझ आ रही है? ओके सर, थैंक ऊपर के जो 3 टॉपिक्स हैं इनको छोड़ दीजिएगा, बाकियों को देख लीजिएगा। यू। ओके सर, थैंक यू। इवन इसमें एक और टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एट स्कूल कॉलेजेस एटसेट्रा, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। यस, एनी अदर क्वेश्चन? टुमारो इंशाल्लाह। नो सर। अब हम कल जो है इंशाल्लाह मिलेंगे टुमारो। ओके सर। आपके पास 5 मिनट अगर सर सर लिसन। यस प्लीज। सर कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो आउट ऑफ सिटी, तो वो किससे सबमिट कराएंगे, तो किन के पास जो लैपटॉप वगैरह का इशू है, तो जैसे आपने पिछले मरतबा किया था मिड में हार्ड कॉपी में सबमिट करा सकते हैं डिपार्टमेंट में। यस सर, प्लीज हार्ड कॉपी अलाउ कर दें। आउट ऑफ सिटी जो है ना उनसे यही है कि वो लोग करके वो मुझे फिर टीसीएस कर दें, और टीसीएस में डेट वेट मौकादा मेंशन होगी, टाइम भी मेंशन होता है, वो मुझे व्हाट्सअप कर दें। ओके सर। ठीक है, टाइम याद रखिएगा, टाइम की केयर बहुत ज़रूरी होती है। जो टाइम की केयर को नहीं समझता तो वो समझना उसके लिए मसाइल है। तो टाइम को आप समझिए, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ वेरी वेरी, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सो आप उसका जो है ना टीसीएस कर दीजिएगा और मुझे इसका सेंड कर दीजिएगा, जो टीसीएस वाले की जो स्लिप होगी ना वो मुझे सेंड कीजिएगा टाइम के साथ, ताकि मुझे पता चले कि आपने उसको इतने बजट टीसीएस किया है। Yes, any other? सर टाइम कितना होगा? टाइम लास्ट टाइम 12 आवर्स से आप थोड़ा पूछ के बताऊंगा, because things keep on changing. I'll talk to Sir Saqib and then I'll tell you how much time you will be given, because all the teachers will conduct online exams. सभी आपके ऑनलाइन ही होंगे ना सफा? Yes, sir. हाँ तो बस वैसे जो सर भी- on previous time, last time when I met to Sir Saqib to ask him, तो सर साकिब ने बताया, बोला 24 घंटे का बोला है सर साकिब ने। आप अपने तरफ से भी पूछ लें, मगर सर साकिब ने मैं 24 घंटे बोले थे। बस जो भी देखें, सर साकिब इस वक्त हेड है डिपार्टमेंट के, जैसा वो कहेंगे हम उसको फॉलो करेंगे विदाउट एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो आप वो तो आपसे कहा, अगर अब मैं उनसे पूछूंगा तो वो मुझसे अगर कहेंगे 24 घंटे तो 24 घंटे, मुझसे अगर कहते हैं 12 घंटे तो 12 घंटे, जैसे वो कहें। लेकिन मेरा ख्याल है 24 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 घंटे जो है ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलो 12 घंटे हम कर लेते हैं। मैं एक जगह एग्जाम्स ले रहा था, सिर्फ 6 घंटे दिए थे उन्होंने, तो 12 घंटे और 24 घंटे तो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें तो स्टूडेंट्स अच्छा खासा, मतलब ये कि वो
ढूंढ ढूंढ के निकाल के वो लिख लेगा। फिर भी हम पूछ लेंगे, हर यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी होती है। एनी अदर क्वेश्चन? तो बी सर रेडी आई फॉर थिंक टुमारोज। ढूंढने की तो बात नहीं है, जो ढूंढ के करेंगे वो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं फिर, लेकिन अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिखने में तो टाइम लगता है। देखिए वो तो आप क्लासरूम में भी अपनी वर्डिंग में करती ना, क्लासरूम में कोई हम कहीं से ढूंढ के थोड़ी लिखते हैं। 3 घंटे या 2 घंटे में उसका पेपर होता है, ये क्लासरूम में हम लोग 2 घंटे में करते नहीं करते। वही चीज सर यहाँ वो भी। पेपर शॉर्ट होता है, ऑनलाइन में आप लोग आप बहुत देखें, लेंथी पेपर आपको देते हैं। क्लासरूम में आपने कहा कि इतने सारे टॉपिक्स हैं, मैंने इनमें 4 कम कर दिए। ऑनलाइन भी आपके पास किताब सामने आपके होती है, हर चीज आपके सामने होती है, नेट आपके सामने होता है, ठीक है। आपने ठक करके आगे पीछे जो भी चेक किया, करने के बाद आपने निकाला, उसे अपने अल्फाजों में लिखना होगा, ये होता है बस। जबकि ऑन कैंपस एग्जाम से आपके पास कुछ भी नहीं होता, यू हैव नथिंग विद यू एंड यू आर गिवन अ पेपर एंड यू हैव टू डू दैट पेपर इन 2 आवर्स। तो आप खुद सोचे, वहां भी तो अपने हर जगह अपने अल्फाजों में लिखना होता है, तो इसमें थोड़ी कि अपने अल्फाजों में लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, कॉपी पेस्ट करेंगे तो टाइम तो। जो कॉपी पेस्ट करेगा उसको नंबर भी कॉपी पेस्ट वाले ही मिलेंगे, आप ये बात हमेशा याद रखिएगा। ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर दिस थिंग दैट teachers know very well about all these sources, we know better than you about all these sources कि कहाँ से आपने क्या कॉपी की, कहाँ से क्या नहीं। आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर निकल आए, खाली हम वो चीज रखते हैं और पता चल जाता है कि ये कितने परसेंट प्लेजरिज्म में है, कितने परसेंट, यानी कि आपने कॉपी पेस्ट किया होगा तो उसको प्लेजराइज कहते हैं। तो वो पता चल जाता है कि कितना आप लोगों ने प्लेजराइज किया है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई ये कहे कि सर कॉपी पेस्ट वाला जो वो अच्छे नंबर लेके चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अगर सब कुछ दुरुस्त भी करेगा तो हार्डली पासिंग मार्क्स ही हासिल कर सकेगा, क्योंकि उसने कॉपी पेस्ट किया। तो आप लोग सब अपनी ओके, तरफ थैंक से यू सर। बेहतरीन काम करने की कोशिश कीजिएगा। सब पढ़ाया तो है आप लोगों ने, और ये सब प्रैक्टिकल यस चीज़ें हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं जो प्रैक्टिकल ना हो, है कि नहीं प्रैक्टिकल, टीचिंग लैंग्वेज यस सर। स्ट्रक्चर और ये सब कुछ। तो अगर आपसे कहा जाए कि हाउ टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर, हाउ टू टीच दिस एंड दैट स्ट्रक्चर, गिव सम एग्जांपल, तो आपने क्या करना होगा, तो उसकी एग्जांपल्स देनी होगी, बताना होगा कैसे, पहले थियोरेटिकली बताना है, फिर उसकी एग्जांपल्स देनी होगी कि सर इस तरह से हम टेंसेस पढ़ाते हैं, या हमें हम पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस एंड दैट लिंग्विस्ट, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए ग्रामर आइटम के बारे में, तो आप उसके बारे में इस तरह से बताएं। तो दीज ऑल आर प्रैक्टिकल थिंग्स। 4 टॉपिक्स मैंने छुड़वा दिए हैं, फर्स्ट 3 एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इसको भी मैंने कहा आप छोड़ दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर हमें अपनी जो हार्ड कॉपी हम पेपर लिखेंगे हार्ड कॉपी में, वो हमें कैंपस में सबमिट करवाना है? हार्ड कॉपी इसके बारे में भी सर साकिब से मैं पूछ लूंगा, मेरे ख्याल से इसका भी ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन टाइम पे सबमिट करवाना होगा, ठीक है। ओके इसका सर। भी पूछ लेता हूँ सर से। दोज हु आर लिविंग आउटसाइड कराची दे कैन टीसीएस, ठीक है। वो टीसीएस कर दें डिपार्टमेंट को ही, ताकि उनकी की फाइल एक ही जगह पर मैं एक दिन आके लेके चला जाऊंगा आप लोगों की ना कॉपीज और जो भी कुछ है। और जो मिसाल के तौर पे घर में हार्ड कॉपी पे करेंगे तो वो फिर हार्ड कॉपीज ला के जमा करवाएं, लेकिन ये मैं आज जाके पूछ के ना आप लोगों को कल बता दूंगा। सर जैसे सॉफ्ट कॉपी अलाउ नहीं है? आप लोगों को बताया तो गया होगा ना, वैसे यू मस्ट हैव बीन गिवन इंस्ट्रक्शन बाय योर अदर टीचर। साकिब ने भी बताया, डज साकिब टेक योर क्लास, मैडम शाजिया टेक्स योर क्लास, लेती ना आप लोगों की क्लास? नो सर। सर साकिब क्लास लेते हैं क्या? सर नो सर, अभी नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे? तो और अभी किसी तक टीचर तो ने सर आपको बताया तो नहीं होगा है। कुछ कि भाई आप तरीकाकार क्या है? चलो कोई मसला नहीं, डजंट मैटर, मैं आपको इंशाल्लाह कल बता दूंगा। आज मैं जा रहा हूँ, तो आई विल टॉक टू मैडम फरियाल। बेसिकली सर, जी सॉरी टू इंटरप्ट, बेसिकली सर हमने जो अभी तक जो पेपर किए हैं, 2 पेपर हमने असाइनमेंट के सूरत पे किए हैं, जो कि हमें जो है ना 2 हफ्ते मिले थे असाइनमेंट के सूरत में। हमने अपना पेपर करके सर सबमिट करवा दिए हैं वो सर। तो असल में एक तो वो जो असाइनमेंट के सूरत में सर एक पेपर हमने सबमिट करवा दिया, नो दूसरा सर, पेपर नो हम सर, ऐसा सबमिट कुछ नहीं करवा। है, बस छोड़ दें सर, अब अपनी। नहीं, वो जो आप बता रहे हैं ना, वो तो यार 20 नंबर का असाइनमेंट होता है, और वो उसके लिए हम टाइम इतना देते हैं 2 हफ्ते का। बाकी जो ऑनलाइन एग्जाम्स सर होते हैं ना, आप जैसे नहीं अपना पेपर ले सर, जो जिसको एक असाइनमेंट होता है, एक ऑनलाइन एग्जाम्स होता है। ऑनलाइन एग्जाम्स का जहाँ तक ताल्लुक है ना, वो तो इतना थोड़ी टाइम मिलेगा यार। असाइनमेंट का अलग चीज़ होता है, क्योंकि वो टोटली रिसर्च बेस्ड होता है, तो उसमें टाइम थोड़ा लगता है। जबकि ऑनलाइन जो एग्जाम्स होता है, उस सवाल के जवाब देने होते हैं, तो उसमें आपको 24 घंटे से ज़्यादा टाइम कोई नहीं देगा, ठीक है। वो भी बड़े पेपर में होता है, आपका 2 घंटे का 50 नंबर का पेपर, हाफ पेपर है आप लोगों का, तो इसलिए जो 24 घंटे नहीं होंगे वो।
12 घंटे कम मैक्सिमम होंगे। तो मैं फिर भी सर से पूछ के ना आप लोगों को जो भी सर उन्होंने डिसाइड किया होगा ना, देयर वाज अ मीटिंग, इन दैट मीटिंग व्हाटएवर दे हैव डिसाइडेड, सो दे विल टेल मी। मैं उनसे फोन पे ही मालूम कर लूंगा, वैसे फिजिकली भी अभी आज जाऊंगा, मालूम करके आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। डोंट वरी अबाउट दिस, इस बारे में परेशान ना हो, ठीक है। आप लोग ओके बस सर। इन चीज़ों की को रिवीजन करें, और वो जो पोइट्री वाला है हिसाब किताब उसको देख लें। मैं इसकी बकिया वीडियोस आज रात तक अपलोड कर दूंगा, 2 क्लास कल होंगी, दिस इज हाउ इट विल एंड, ठीक है। तो आप लोग इस पर अपना फोकस रखें, पहले पोइट्री का आपके पास है एंड देन दिस वन, इसके लिए तो 1 हफ्ता आपके पास है पोइट्री के बाद भी, तो पोइट्री वाले पे फोकस रखिएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ओके sir. सर। सर ओके, थैंक यू सर। सर ओके सर, हमारे थैंक यू फोर्थ सर। हमारे सर यस यस सर लास्ट थर्ड सेमेस्टर सर जो हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर है उसका सर अगर रिजल्ट सर पता चल जाता है, और इस सर सेमेस्टर में जो हमने सेशनल मार्क्स गेन किए हैं सर उनका थोड़ा पता चले कितना में यार देखो सेशनल मार्क्स मिला है। देखो मैं एक बात बताऊं कि जो फोर्थ का है ना वो तो मैं जमा करवा चुका हूँ। अगर मैंने आपको फोर्थ में पढ़ाया था, जी जी जमा करवा दिया है। फोर्थ का मैं जमा करवा चुका हूँ, अभी भी नहीं, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आप लोग मैडम फरियाल से मालूम कर लें, ठीक है। और मैंने मेरे ख्याल से आप लोगों को बताया भी तो था। नहीं बताया सर आपने, और मैं सर नहीं डिपार्टमेंट में हम बताया। लोग गए थे, डिपार्टमेंट में मैम फरियाल ने बोला मैं मुझे मिल नहीं रहा है, शायद जमा करवाया होगा मगर मुझे मिल नहीं रहा है सर। मैंने आपने असल सबके में चेक किए जी सर, जी आपका नहीं गया। हाँ, मैंने उनको सबसे पहले गालिबन मैंने ही जमा करवाया था वहाँ पर ना, क्योंकि मैं रिजल्ट रखता नहीं हूँ, फटाफट जमा करवा देता हूँ। तो अभी जाऊँगा मैडम से, मैं मालूम कर लूँगा, अगर वो कहती नहीं है तो फिर उसको ढूंढ के निकाल के ना बता देंगे आपको। फोर्थ सेमेस्टर में क्या था आपको जो मैंने पढ़ाया था, सिमेंटिक्स। सर सिमेटिक। सेमेस्टिक्स। हाँ तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, उसके बारे में भी आप फिक्र नहीं करें। और बाकी जो आप कह रहे हैं ना ये सर इसके सेशनल मार्क्स, तो यार ये एक्चुअली सब एक साथ करके आपको बताए जाएंगे, क्योंकि बास इस टाइम ऐसा होता है कि सेशनल मार्क्स में आप लोग की कारकर्दगी थोड़ी ख़राब होती तो उससे कवर हो जाती है। बाद वक़्त जो आपके जो अभी टर्मिनल एग्जाम उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इससे कवर अप नहीं के सबको हम एक साथ करके स्टूडेंट्स की रेपुटेशन, क्लास पार्टिसिपेशन, रेगुलर होना, ये सब चीज़ें फिर हम उसको ऐड करके उसका बना देते हैं। पहले से अगर बता देंगे तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट फिर वो बाद में इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप ही का फायदा, उसमें नुकसान नहीं है आपका, बस इतना आप ध्यान में रखें कि इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। मगर सर we hope that we might have been given well number in your paper, whether You we should talk hope that about the you, fourth ठीक है, semester. you should hope that you might you may have got good marks। टीचर आपको नंबर थोड़ी देता है, ये तो आप होते हैं कि आप अपनी मेहनत से नंबर हासिल करते हैं, जिसने जैसा किया होगा वैसे उसको नंबर मिले होंगे। जो अच्छा Sir, we करेगा तो tried उसको our level best, sir. We या tried our level best. जो जैसा करेगा उसको मार्क्स भी ऐसे मिलेंगे, ठीक है। और अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स का पेपर ना रहे, लेकिन जब अगर कोई पेपर ऑनलाइन एग्जाम्स में तो बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी जो फेल हो जाए, वरना तो अक्सर पास हो जाते हैं। ऑन कैंपस में अच्छे खाते स्टूडेंट जो हैं वो रह भी जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को फायदा ये, नुकसान नहीं है। अब जो जितना अच्छा करेगा, याद रखिएगा आपकी सब चीज़ें काउंट होती है, योर रेगुलर, योर अटेंडेंस, योर क्लास पार्टिसिपेशन, योर टाइमली सबमिशन ऑफ असाइनमेंट, योर टाइमली गिवन ऑफ प्रेजेंटेशन। अभी देखें ना कितने स्टूडेंट जैसे जिन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं दी है। अब इनमें से कल को मैंने कहा कि 3 से 4 मौके दिए हैं प्रेजेंटेशन के, बट अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट अवेल द अपॉर्चुनिटी। अब वो कल बोलेंगे सर प्रेजेंटेशन ले लें, तो अब मैं कैसे लूँगा, मैं तो रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा और उनकी वो 80 या 75